Shall we start, ma'am? I'm ready. Hello, am I audible? Yes, this is your audible. Ma'am. Hello. Yes, start करतो, ma'am. Uh, can I start? No, just wait, ma'am. Yes, Hello, Abhishek. yes, ma'am. Yes, you can start. Yes. Thank you. I put the Good mic evening, one and immediately. all. Yes, ma'am. Good evening, one and all. Myself, Dr. Kokre. Welcome you all on behalf of NEMA Central, NEMA OBGY Central, NEMA OBGY Maharashtra Society, with the blessings of Lord Dhanvantari and with due permission of all the dignitaries, I am starting today's webinar on clinical cases and its Ayurvedic management of disturbed HPO axis with special reference to Artavkshaya, amenorrhea, by our today's eminent speaker, Dr. Krupa Patel ma'am. Krupa Patel ma'am is Associated Professor and HOD, PTSR Department, Government Ayurveda College, Junagadh, Gujarat. Clinician and academic career of 14 years, presented many research papers and published one book on PCOD in Ayurveda. Currently handling NM project named Supraja in Government Ayurvedic College, Junagadh. I welcome Dr. Krupa Patel ma'am and I request to start today's topic. Jai Dhanvantari to all. Am I audible, sir? Good evening, ma'am. Very good evening, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Very good evening to all of you, to especially Nima OBGY Central for giving me this opportunity. Without wasting any time, I'm sharing my presentation. The presentation is visible. Yes, madam. Okay. So today we are going to discuss actually on the topic of clinical cases and its Ayurveda management of disturbed HPO axis with special reference to Artavkshaya. I have chosen this topic, particularly Artavkshaya, because nowadays patient of Artavkshaya, particularly scanty menses and delayed menses up to 2 and 3 months, or sometimes just only after withdrawal medicine, this type of patients are coming very much. So I have taken this topic, and the theme was also the HPO axis. So now I'm going to start. First of all, the today's learning objectives are understanding of HPO axis, physiology of menstruation, Ayurveda concept of HPO axis, then amenorrhea, arthokshay, and my hypothetical understanding and clinical cases. As we all know, I am not going through detailed HPO axis description because we all know it. I want to actually share and discuss the clinical cases and its treatment, and how should we take HPO axis in Ayurveda particularly. So we all know what is HPO axis. HPO stands for hypothalamo pituitary ovarian axis. That means hypothalamus, pituitary, and ovary. These three organs or these three stage, which is interrelated, interconnected, and responsible for mainly menstruation and ovulation. So
it starts from hypothalamus, which secretes GnRH hormones, which in turn stimulates pituitary hormones, particularly anterior pituitary, to secrete again gonadotrophins, which in turn stimulates ovary. And lastly, that ovary is stimulated and secrete female sex steroidal hormones, which is compulsory required for the menstruation. Now, थोड़ा डिटेल में देखें तो एक्चुअली इस एक्सिस को HPO नहीं लेकिन HPO-U एक्सिस कहना चाहिए. Why? Because the end result of this coordinated HPO axis is the menstruation. So this menstruation actually starts from the hypothalamus level. When hypothalamus is stimulated at around age of 12 or 13 years, that is the menarche age, it starts secreting gonadotrophin releasing hormone, GnRH. That in turn stimulates anterior pituitary particularly, which secretes FSH hormones and LH. इनिशियली LH का सिक्रेशन जो होता है शुरुआत के एज में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मेनार्की, but for the ovulation and menstruation, FSH is required mainly. This FSH, as it stands for follicle stimulating hormone, is stimulating hormone for the ovarian follicles. ओवरी में जो फॉलिकल्स रहते हैं उसको FSH स्टिमुलेट्स करते हैं. उसकी वजह से वो फॉलिकल्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं जो अल्टीमेटली सीक्रेट्स इस्ट्रोजन्स. वही इस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के लिए भी जरूरी है. उसी का हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है एक पीक लेवल पर पहुंच के. जब उसका पीक लेवल सस्टेन रहता है 48 आवर्स तक, तब जाके LH सर्च होता है. दैट LH इज सिक्रेटेड फ्रॉम अगेन पिट्यूटरी. उसके ये LH FSH LH का सर्च होने की वजह से ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल्स है जो रप्चर हुआ था ग्राफियन फॉलिकल्स में से, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है जो अगेन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है. अब ये जो हार्मोन्स है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो अल्टीमेटली काम करते हैं यूट्रस पर. दे स्टिमुलेट यूट्रस, particularly endometrium. Endometrium is having particularly receptor for estrogen. Now this estrogen initiate proliferative changes in that endometrium. We all know what is the proliferation. There is a new cell growth in endometrium. Endometrium के cells, glands, stromal cells जब growth, उसका growth होना चालू होता है, development होता है. फिर ओव्यूलेशन के बाद सिक्रेटरी फेज चालू होता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन. उस टाइम पे ग्रोथ नहीं होता लेकिन सिर्फ सिक्रेशन होता है. एंड व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, सो द टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज देयर in the endometrium, ischemia and tissue necrosis, and the so collected blood is expelled out, which is known as menses. So the menses is the end result of coordinated HPO-U axis. Now, why it is coordinated? Coordination is too much required. Starting from the hypothalamus, which secrete GnRH in tonic, cyclic, and pulsatile manner. Then they stimulate pituitary hormones. Pituitary hormones, particularly FSH and LH, they are secreted in particular time. Initially, FSH is secreted, then FSH is required for the development, for the secretion of estrogen. When estrogen reaches to a high peak level, it exerts a negative feedback and then suppresses FSH. So here what we have to note is the negative feedback. Then LH secretion is there. Then after LH secretion, there is an ovulation. After ovulation, again there is a gradual rise in estrogen and progesterone, which is secreted from corpus luteum. This estrogen and progesterone, particularly progesterone, exert again negative feedback on GnRH hormones. That means at that time,
GnRH release is suppressed by the negative feedback of progesterone. But as there is no fertilization, the corpus luteum start degenerating, and then there is a gradual fall in estrogen and progesterone. So the negative feedback, the suppression of GnRH is released, and now they again start releasing GnRH hormones and then FSH-LN, and thus the cycles goes on. So the coordination between all these three levels, HPO and uterus, and the feedback, negative and positive feedback, both is required for the cyclic, timely, and in a quantity menses. Now, why quantity and how? We all know this menstrual cycle, at which particularly phase, which hormone is high in a level. Simultaneously, ovarian cycle and uterine cycle both are going simultaneously. So particularly for the development of endometrium, which is required for proper flow of menstruation, follicular phase, or we can say proliferative phase, is most essential or most important, because in that particular phase एंडोमेट्रियम इज डेवलप्ड, प्रॉपरली डेवलप्ड, और ये ऐसा फेज है जो साइकिल की लेंथ और क्वांटिटी दोनों तय करता है. इफ देर इज अ डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड फॉलिक्यूलर साइकिल, the endometrium is growing in a more quantity, more size. So there will be prolonged phase of amenorrhea, which is followed by excessive menses. सो पेशेंट की कंप्लेन होगी 3-4 महीने या 2-3 महीने के बाद आता है, लेकिन जब भी आता है तब ज्यादा मेंसेस आता है. और इफ द फॉलिक्यूलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज इज शॉर्टन, सो देयर विल बी अ menses quantity will be very scanty, and the cycle is also short. सो पेशेंट की कंप्लेन होगी कि मेंसेस जल्दी आ जाता है, लेकिन जब आता है तब थोड़ा आता है. सो this phase, particularly proliferative phase, is essential for the quantity of menses. And again, yes, it is also essential for the development of ovum too. If there is a normal ovulation, there the cycle will be normal, and if there is a ovulation in particular perfect time, the proliferative phase is also good. So the quantity of menses is also there. नाउ आयुर्वेदा कोरिलेशन, ये पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम आयुर्वेद में कैसे समझते हैं, फिर उसको एचपीओ एक्सिस पर आयुर्वेद में कैसे समझते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट फॉर द मेंस्ट्रुएशन particularly, the word आर्तव is used particularly. Along with that, rajah, raktah, pushpah, these words are also used to denote artav or denote menstruation. Now, here, what we want to know or what we should consider is the formation of Artav, because we are discussing the cases of the Artav Kshay. So, what are the actual physiology for the formation of Artav? So, here there are given too many references. All in short are describing that पूरे महीने में गर्भाशय में रस और रक्त का, पर्टिकुलरली दे हैव यूज्ड द वर्ड रक्त का संचय होने के बाद वायु के द्वारा जो रक्त at the end of the month बाहर आता है, that is आर्तव. So here what we should consider that रक्त का संचय होना, गर्भाशय में रक्त का आना और फिर उसका संचय होना, और दिस ये जो रक्त का आना और संचय होना है वो पॉसिबल होता है धमनी या रक्तवाह शिरा से. आयुर्वेद में धमनी, शिरा, नाड़ी, स्रोतस, ये सभी ऐसे फिजियोलॉजिकल चैनल्स को डिनोट करते हैं जो कुछ वहन करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टिंग समथिंग. हियर पर्टिकुलरली द आर्तव and rakta. Rakta is being carried to the uterus. There it is collected and then it is expelled out
by vayu which is known as आर्तव. So गर्भाशय में रक्त का संचय होना जरूरी है. यहाँ पे हमें ये समझना है कि आर्तव को रस की उपधातु बताई है. आचार्य अष्टांग ने रक्त की उपधातु बताई है बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज इन द गुण. तो पर मेनली रस की उपधातु बताई है आर्तव. तो रस और रक्त का दोनों का नॉर्मल होना, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, रस धात्वाग्नि, इन सब का नॉर्मल होना जरूरी है आर्तव के फॉर्मेशन के लिए. तभी जाके रक्त और पर्टिकुलरली रक्त धातु, धमनी में से रक्त आके आर्तव का फॉर्मेशन होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आयुर्वेद में दोषिक इन्वॉल्वमेंट से देखें तो सभी दोष वैसे सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर फेज में पर्टिकुलर कोई एक दोष का डोमिनेंस रहता है. तो एज पर अगर हम देखें तो प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन द यूट्रस एंड एट द सेम टाइम follicular changes in the ovary, this both are actually the growth phase. तो हमें पता है कि कफ इज द मेन प्रीडोमिनेंट दोष रिक्वायर फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट. सो ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ होना और उसी टाइम पे यूट्रस में एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होना, ये कफ की वजह से होता है. यहाँ पे पित्त और वात दोनों का काम है, लेकिन कफ का प्रीडोमिनेंसी ज्यादा है. पित्त का कैसे काम समझ सकते हैं कि जब भी फॉलिकल्स में से इस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है थीका और ग्रेन्युलोसा सेल में, तो जो ग्रेन्युलोसा सेल में से एरोमेटाइजेशन से एंड्रोजन से इस्ट्रोजन का कन्वर्जेशन होता है. तो एक मॉलिक्यूल में से दूसरे मॉलिक्यूल में जाने का जो कन्वर्जेशन होता है वो पित्त की वजह से होता है. तो यहाँ पे पित्त का काम भी है, लेकिन मेनली जो हम देखते हैं दैट इज द ग्रोथ फॉलिकल्स का और प्रोलिफरेशन. सो कफ इज प्रीडोमिनेंटली हियर. Then the next phase is ovulation and secretory phase. We all know Pitta is responsible for any kind of स्राव. सो यहाँ पे हमें पता है कि सिक्रीटरी चेंजेस होता है, ग्रोथ नहीं होता. जो ग्रोथ हुए सेल्स है उसमें सिक्रीशन होता है, ग्लाइकोजन रिच का सिक्रीशन होता है. और फिर जब एक लेवल पे वो उसका सिक्रीशन आ जाता है, ग्रोथ आ जाता है, और बिकॉज ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, रक्त का संचय हुआ है, वात पर्टिकुलरली यहाँ पे अपान वायु, क्योंकि अपान वायु का कर्म और स्थान पेल्विक कैविटी है, तो अपान वायु वो रक्त, संचित रक्त को बाहर लाता है. दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज. तो 3 फेज को हम वात पित्त कफ के डोमिनेंसी से भी समझ सकते हैं. ये पूरा रसवह स्रोतस का तो इसका इन्फ्लुएंस है, इसको हम आर्तवह स्रोतस से भी समझ सकते हैं कि ये एक आर्तव वहन करने वाला स्रोतस है, जहां से हम स्थूल रूप से आर्तव को देख सकते हैं. अब जो स्रोतस की जो कॉन्सेप्ट थियरी आयुर्वेद में बताई है, पर्टिकुलरली आर्तव वह स्रोतस को, उसको मैंने उसको मैंने जिस तरह से समझा है वो मैं आपको बताती हूँ. एक, मैं स्रोतस को पर्टिकुलरली आर्तव स्रोतस को 2 रूप से समझती हूँ. एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म. स्थूल स्रोतस वो है जो हम देखते हैं, जो पर्टिकुलरली विजिबल मेंसेस को लेके बाहर आता है, दैट इज फ्रॉम द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ वेजाइना. दैट इज द स्थूल रूप ऑफ स्रोतस. इस आर्तवह स्रोतस के चैनल में अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन. सो दैट इज एब्सोल्युटली नोन बाय एवरीवन कि अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इन क्रिप्टोमेनोरिया, तो देयर इज नो मेंसेस. देयर इज मेंसेस बट विजिबल मेंसेस इज नॉट देयर. सो स्थूल रूप से ये एक आर्तवह स्रोतस है. अब जो है सूक्ष्म रूप का स्रोतस, सूक्ष्म रूप का आर्तवह स्रोतस में भी 2 चीजें हैं. एक है जो आर्तव कैरिंग चैनल से आर्तव के लिए जो जरूरी रक्त का वहन करने वाली गर्भाशय तक आने वाली जो रक्त की धमनियां है, यहाँ पे हम लेते हैं उसको यूट्राइन वेसल्स, जो अप टू स्पाइरल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी की स्पाइरल आर्टरी तक की जितनी भी ब्रांच है वो, और वहां तक उसका संचय होने के लिए जो जरूरी है वो सारे हॉर्मोन्स, पर्टिकुलरली इस्ट्रोजन की वजह से वहां पे प्रोलिफरेशन होता है. तो इस्ट्रोजन ये कहाँ से आया, तो एचपीओ एक्सिस की एंड प्रोडक्ट है. तो एचपीओ एक्सिस इट इज ऑल्सो, इट शुड बी कंसिडर अंडर आर्तवह स्रोतस सूक्ष्म रूप, क्योंकि अगर
उसमें कहीं पे भी डिस्टरबेंस है तो देर विल बी नो प्रोडक्शन और अ लेस प्रोडक्शन ऑफ आर्तव। सो मैं यहाँ पे एचपीओ एक्सिस को आर्तवह स्रोतस के सूक्ष्म रूप से भी लेती हूँ, क्योंकि उसका अगर वहां पे कोई जगह पे प्रॉब्लम है तो ये जो फिजियोलॉजी हम देखते हैं वो नहीं देखने को मिलती। ये एक जो हाइपोथेसिस बनाया है, एक्चुअली ये पूरा ट्रीटमेंट के बेस पे मिला है। जो मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट मिला है उस पे मैंने रिवर्स थिंकिंग करके ये बनाया है कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, इसीलिए मुझे इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। नाउ hypothalamus and pituitary both are situated in the brain और in the मस्तिष्क, और वहां पे स्थान है पर्टिकुलरली प्राणवायु का। उसको प्राण इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरे शरीर का जितने भी फिजियोलॉजी है, जितने भी हार्मोनल सिक्रेशन है, उसको कंट्रोल करता है। वैसे उसका नाम ही इसी वजह से प्राण है। पर्टिकुलरली उसका कर्म देखने जाए जो आर्तव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एक है हृदय अवलंबन, हृदय का धारण करता है। हृदय रसवह स्रोतस का मूल है, रसवह धातु की उपधातु आर्तव है। तो अगेन प्राण somehow affects the production of artha, but the hypothalamus and pituitary both situated in the murdha, so we can compare it to the pran. And then ovary, hpo ovary, ovary is situated in the pelvic region। पेल्विक के लिए पर्टिकुलरली स्थान बताया है अपान वायु। वैसे तो सारे दोष पूरे शरीर में रहते हैं, पर कार्य की दृष्टि और उसको समझने के लिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अपान वायु पर्टिकुलरली श्रोणी में, पेल्विस में है, और उसका तो कर्म ही है मल मूत्र शुक्र गर्भ और आर्तव को टाइमली एक्सपेल आउट करना। तो ओवरी का जो भी कर्म है वो अपान वायु के अंडर में आता है। तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को कोऑर्डिनेशन में जो चल रहा है वो प्राण और अपान वायु के कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। लेकिन हमने जैसे देखा कि ये वन वे नहीं है, एचपीओ ही नहीं है, मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से ओवेरियन, बस यहाँ पे खत्म नहीं होता। ओवेरियन के जो इस्ट्रोजन सिक्रेशन है वो वापस पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अपान वायु की अनुलोमन गति होनी चाहिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब अग्नि प्रॉपर हो। प्राण और अपान के बीच में कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब अग्नि, कायाग्नि एंड धात्वाग्नि अगर बराबर हो, और ये तभी ये दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है कि प्राण और अपान और साथ में अग्नि, ये तीन चीजों का ध्यान हमें आर्तव के फॉर्मेशन के लिए कंसीडर करना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते पेशेंट में ट्रीटमेंट करनी चाहिए अलोंग विथ रस धातु एंड रक्त धातु, क्योंकि सबसे पहली जो धातु है वही रस धातु है। अगर कायाग्नि, अगर मंदाग्नि है तो रस धातु का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आगे की सभी धातु और उपधातु प्रॉपर नहीं बनेगी। साथ साथ में धात्वाग्नि, रस धात्वाग्नि भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसमें से रक्त और उपधातु आर्तव भी प्रॉपर बनना चाहिए। So now coming to the this is particularly first we go through the modern point, amenorrhea. As we know, it is the absence of menstruation. It is the two types, primary and secondary. First is primary amenorrhea. If the lady is not having period up to the age of 16 years, it is known as a primary amenorrhea. ये भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन, ये किसी भी लेवल पे से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। सबसे पहली चीज है, अगर मुलेरियन एजिनेसिस है, अगर यूट्रस ही नहीं है या यूट्रस का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो मेंसेस बाहर फिजिकली विजिबल नहीं होगा। और क्रिप्टोमेनोरिया इज ऑल्सो प्राइमरी एमेनोरिया व्हेन देयर इज अ मेंसेस बट इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट बिकॉज ऑफ वेजाइनल सेप्टम or imperforated hymen. So that is also considered in primary amenorrhea.
अदर देन दैट यहाँ पे मैंने पूरा बताया है कि काल्मन सिंड्रोम है एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस, देन टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, सॉयर सिंड्रोम्स, देन दैट इज गोनाडल डिस्टिनेसिस, अगर ओवरी स्ट्रिक है या उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है तो ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का भी पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, तो मेंसेस भी नहीं होता है। और इसके अलावा एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो ये जो पूरे एचपीओ यू एक्सिस में कहीं पे भी अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एक्सर्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक जीएनआरएच सिक्रेशन अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो प्राइमरी एमेनोरिया इज दैट। And then secondary amenorrhea. If there is amenorrhea since 6 months or a 3 continuous cycle in a patient previously having normal menstrual cycle, then it is known as a secondary amenorrhea. इसके पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया के पेशेंट आज तक मेरे पास सिर्फ एक ही आया है। मोस्टली हमारे पास जो सेकंड पेशेंट आते हैं वो सेकेंडरी एमेनोरिया के आते हैं। The most common cause is pregnancy. Actually, it is a physiological cause, but sometimes patient doesn't know. So it is a most common is pregnancy. Then thyroid dysfunction. जो हमने एचपीओ एक्सिस का कोऑर्डिनेशन देखा उसमें थायराइड, एड्रिनल, इंसुलिन ये हार्मोन भी अफेक्ट करते हैं। तो थायराइड डिस्फंक्शन, पर्टिकुलरली हाइपोथायरॉयडिज्म, obesity and severe anemia. These are the most common cause, particularly thyroid dysfunction and severe anemia and obesity. Nowadays, we are getting the patient of this particular 3 reasons. इसके अलावा अगर लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर जीएनआरएच सिक्रेशन सप्रेस्ड है या कम है एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस, उसके मेन रीजन है हाई एक्सरसाइज। यहाँ पर्टिकुलर जूनागढ़ में हमारे यहाँ पुलिस की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो उनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है उसके लिए दे आर रनिंग फॉर 5 to 6, they are practicing their running and physical exercise for 5 to 7 hours in a day. लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज रहती है उनकी, दौड़ना वगैरह। तो उसकी वजह से वो आते हैं पेशेंट के 3-4 महीने से मेंसेस आया नहीं है। देन हाई प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन इज ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन ऑपोजिट है। अगर इफ देर इज हाई प्रोलेक्टिन देर इज अ सप्रेशन ऑफ मेंसेस, suppression of GnRH secretion. Then bulimia is a actually it's a GI tract disorder, psychosomatic disorder, and anemia. Then at the level of pituitary, Sehan syndromes and Simon syndrome, if there is a partially or complete destruction of the pituitary, so there is no FSH or LH secretion. Then at the level of ovary, if ovary is prematurely fell, matlab if there is a premature insufficiency, so menstruation is not there. And the most common is PCOS और PCOD, जहाँ पे FSH की कंपेयर एलएच का सिक्रेशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन का सिक्रेशन रहता है, और ये दोनों हाई रहते हैं, इसकी वजह से ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियम पर काम नहीं करता, और there is a long period of amenorrhea which is followed by actual menorrhagia. And uterine level, Asherman syndrome, we all know what is Asherman syndrome, that is the complication of PPH. So now come to आयुर्वेद। आयुर्वेद में 3 शब्द पर्टिकुलर यूज हुए हैं, आर्तव, क्षय, नष्टार्तव और रजोनस। ये जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज हुए हैं, तो अरजस का, शंडी, वंध्यार, शुष्का, योनि व्यापद में, रक्तगुल्म में, प्रेगनेंसी गर्भिणी के लक्षण में, और वातज, पित्तज, आर्तव, दुष्टि में। प्रेगनेंसी को छोड़ के बाकी कोई जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। इसके पर्टिकुलरली ऐसा निदान बस बृहत्रयी में नहीं है, लेकिन काश्यप ने बताया है ये जो पर्टिकुलरली सुश्रुत में जो है वो है आर्तव, स्रोतस, विद्ध लक्षण। बाकी जो है अति संशोधन, अति संसमन, वेगधारण, ये जो भी निदान है वो पर्टिकुलरली वात को बढ़ाते हैं, और वात इज द गवर्निंग फैक्टर of the all hormonal cycle. So if Vata Dushti is there will be a Dushti in Artha production or expulsion. So और यहाँ पे है असात्म्य अन्न अनशन related to diet habit.
सबसे पहली धातु अन्न में से प्रॉपर, अगर अग्नि प्रॉपर है तो सबसे पहली धातु रस बनेगी। अगर प्रॉपर धातु नहीं बनती, मतलब अगर प्रॉपर अन्न, प्रॉपर खाना नहीं जा रहा है, असात्मीय अनशन हो रहा है, डाइटरी फॉल्टी हैबिट्स है, तो प्रॉपर रस धातु नहीं बनेगी, तो प्रॉपर उसकी उपधातु भी नहीं बनेगी। मन संताप जो है, स्ट्रेस जो हाइपोथैलेमस को सप्रेस करता है, तो उसकी वजह से भी मेंसेस नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, संप्राप्ति, कि ये सारे निदान से मेंसेस क्यों नष्ट हो जाता है, आर्तव क्यों नष्ट होता है। तो एक ही लाइन में बताया है, दोषे ही आवृत मार्गत्वात् आर्तवम नश्यति स्त्रिया। पर्टिकुलरली कौन से दोष, तो अत्र दोषो कफो वायु वात कफो च। टीका में लिखा है न तो पित्तम, यहाँ पे पित्त का कोई रोल नहीं है, पित्त का एक्चुअली आवरण हो चुका है कफ और वायु के। डिटेल टीका में ये भी लिखा है कि प्रवर्तम न दृश्यति, तो आर्तव है तो सही, लेकिन वो प्रवर्तमान होके दृश्य नहीं होता है। न तो सर्वथा क्षयम याति, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है ऐसा नहीं है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। इट इज एक्चुअली डिनोटिंग द सेकेंडरी एमेनोरिया पर्टिकुलरली, के वो पूरा मार्ग है, वो पेटेंसी है, लेकिन अब उसका आवरण हो गया है वात और कफ की वजह से, इसकी वजह से वो बाहर दिख नहीं रहा है। तो the main reason for this संप्राप्ति is वात कफ आवरण, पर्टिकुलरली वात और कफ की दुष्टि। मंदाग्नि भी, क्योंकि रस वह स्रोतस से ही आगे जाके आर्तव की उत्पत्ति होगी। आर्तवह स्रोतस की दुष्टि, डायरेक्ट आर्तवह स्रोतस की दुष्टि, और अपान दुष्टि, क्योंकि अपान ही है जो आर्तव फॉर्म में जो फॉर्म हुआ है उसको बाहर लाता है। तो ये चार चीज, वात कफ का आवरण, अपान की दुष्टि, मंदाग्नि और आर्तवह स्रोतस और रस एंड रक्तवह स्रोतस, ये चार चीज को ध्यान में रख के हमें ट्रीटमेंट प्लान करनी है। लक्षण बताया है उसके, यथोचित काले अदर्शन, मतलब मासे मासे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, डिलेड आ रहा है, जब आना चाहिए तब वो दर्शन नहीं होता, नहीं हो रहा है, डिलेड मेंसेस। अल्पता, जब भी आता है मेंसेस तो उसका मात्रा कम हो जाती है, स्कैंटी, पर्टिकुलरली पेशेंट ऐसा ही बोलते हैं कि 2-3 महीने में आता है, और जब भी आता है 2-3 दिन ही आता है, या फिर स्पॉटिंग स्पॉटिंग होता है, एंड एसोसिएटेड विथ यूनिवेदना, पेन इन लोअर एब्डोमेन और पेन इन pelvic region और बैक। Now, the treatment, which is actually the main point of this discussion, is the first one is Agni Dipan, because Ras Dhatu from after the proper Agni, and proper Ras Dhatu leads to proper Artav Updhatu. So Agni Dipan should be there. आर्तव जनन, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, आग्नेय द्रव्याणाम विधिवत उपयोग, जो द्रव्य आर्तव के जनन के लिए दिए हैं दैट शुड बी यूज्ड। और वातानुलोमन, बिकॉज अपान वायु का ही कर्म है, वात का ही कर्म है आर्तव को बाहर लाना, आर्तव का प्रोडक्शन बाहर लाना। सो एक्सपल्जन एट द प्रॉपर टाइम। So these three is the main principle, अग्निदीपन, आर्तव जनन और वातानुलोमन। इसके लिए हमारे पास there is a lots of medicine, lots of drugs of choice is there, and according to the availability we are using it like Satpushpa, Rajapravartani, Arogyavardhini, Kwath, Asav, all we are using and getting good results too. Here in my college I emphasize particularly on the Panchkarma, because this oral drug gives good result, excellent result, but for the temporary time। मतलब टिपिकली पेशेंट बोलते हैं जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक था, जैसे दवाई बंद कर दी वापस ये हो गया। For that particular reason I emphasize on the Panchakarma, particularly Basti, Nashya, and if in case required Uttar Basti। बस्ती फॉर द वात एंड नश्य फॉर द प्राण। सो जो मेरा प्राण और अपान की जो थियरी है उसके लिए बस्ती और नश्य, ये पर्टिकुलरली दो चीज पर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ। बस्ती हमें पता है किस तरह से काम करती है, ईएनएस सीएनएस थियरी जो है कि वो जो बस्ती द्रव्य जीआई ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद एंडोजीनस ओपोइड सीएनएस को स्टिमुलेट करके पर्टिकुलरली बीटा एंडोफिन को स्टिमुलेट करते हैं, which has effect on GnRH release, and then in
return in turn regulates the hypothalamo-pituitary ovarian axis. If it is normal secretion, there is normal regular cycle, ovarian cycle and menstrual cycle. Along with this, ये सुश्रुत में बताया है कि गुदा में से जो भी गुद में से जो भी बस्ती द्रव्य डालते हैं वो पूरे सिस्टम में जाता है। उनके उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी वृक्ष के मूल में पानी डालने से पूरे वृक्ष में उसका पोषण जाता है, फ्रॉम द रूट टू द टॉप द लीव। पूरे वृक्ष में मूल में डालने से पानी पोषण पहुंचता है। सो दिस इज द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन हाउ द द्रव्य ऑफ बस्ती रीचेस टू द पोर्टल एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और चरक ने सिद्धिस्थान में ये बताया है कि जब गुदा द्वारा जो शरीर का मूल है वहां से जब बस्ती द्रव्य शरीर में एंटर होते हैं, दैट नॉर्मलाइजेस अपान वायु। सबसे पहले वहां उसका स्थान है तो सबसे पहले अपान वायु नॉर्मलाइज होता है। अब उसकी वजह से दो चीजें होती है। अपान वायु नॉर्मल होने से अपान वायु का जो फंक्शन है आर्तव का एक्सपल्सन, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड। और अपान वायु का एक कर्म है पुरुष का धारण करना, पुरुष का एक्सपल्सन करना, और पुरुष का कर्म बताया है अग्नि धारण। अगर पुरुष का फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो उसका अग्नि भी करेक्शन होती है। तो बस्ती से अग्नि का करेक्शन होता है, ये चरक ने बताया है चरक सिद्धिस्थान में। तो उसकी वजह से अपान वायु की प्रवृत्ति नॉर्मल होती है, यानी मेंसेस के प्रॉपर टाइम पे एक्सपल्सन होता है। यहाँ पे हमें आर्तव से दोनों चीज लेनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, because if there is a proper ovulation, there is a proper menstruation at the proper time. और नस्य का भी हमें पता है बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस भी डाला है कि नश्य किस तरह से ऑल्फैक्टरी नर्व्स को स्टिमुलेट करके जीएनआरएच तक, क्योंकि जीएनआरएच के जो न्यूरॉन्स है वो ऑल्फैक्टरी प्लेकॉर्ड में से ही उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो if we want to stimulate GnRH neurons or hormones, we should give any drug to the nasal route. So they stimulate the GnRH secretion, pulsatile secretion. So the ovulation is there, and if there is a proper ovulation, there is a proper menstruation at the proper time. Now, the clinical cases which I have come across since last 3-4 months. The first case is patient 40 year age, उसकी चीफ कंप्लेंट स्कैंटीमेंसिस। यहाँ पे उसका साइकिल शॉर्ट था, आता था सिर्फ एक ही दिन, लेकिन 21 to 22 डेज साइकिल में, अलोंग विद बैक पेन, एंड उसकी बिल्कुल भी उसको भूख नहीं लगती थी। और वो पेशेंट जो था सिर्फ एक ही दिन मेंसेस आता था। हमने उसमें रस रक्त का क्षय और उसको एपेटाइट बिल्कुल नहीं थी, बैकेक था, तो हमने आम की उत्पत्ति, जो भी रस आतव स्रोतस में अवरोध हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका आम पाचन करवाया। रस रक्त वृद्धि के लिए हमने पुनर्नवा मंडूर दिया, रज प्रवर्तनी दी, और उसको एक बार मेंसेस आने के बाद फिर हमने योग बस्ती प्लान की। आफ्टर ओनली 1 योग बस्ती, पेशेंट इज गेटिंग 2 days menses in a proper quantity, but the cycle is just 20 to 23 days. So हमने एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा प्रोलिफरेशन बढ़ाया, जिसकी वजह आम पाचन किया सबसे मेन, तो उसका रस रक्त का वहन और आर्तव का वहन प्रॉपर हुआ। जो पहले एक ही दिन आता था वो 2 दिन हुआ, और फिर हमने योग बस्ती के लिए प्लान किया ताकि वो धीरे धीरे साइकिल की लेंथ भी बढ़े। Second one is 19 years unmarried girl with the chief complaint of scanty and delayed menses, 4 to 5 days at the almost up to 2 month। 2 month पे उसको 4 से 5 दिन तक menses आता है, that is also scanty, along with unwanted hair growth on lips and cheek. So it was clear cut the patient was of PCOD or PCOS. There is a hirsutism. पेशेंट की कंप्लेन ये भी थी, पहली कंप्लेन तो स्कैंटी मेंसेस की थी, लेकिन ये भी थी कि उसको ये बाल ज्यादा आ रहे हैं, मेल पैटर्न। सो देर इज अ वात कफ आवरण। ये जो पर्टिकुलरली संप्राप्ति दी हुई है 2 से आवृत मार्गत्वात, ये
अकॉर्डिंग टू मी पीसीओडी में पर्टिकुलरली परफेक्ट बैठती है जब एंड्रोजन एक्सेस इज देयर। वी नो द एंड्रोजन एंड इस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर हैं एंडोमेट्रियम में, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। So, if there is a high production of androgen due to high secretion of LH that we found in PCOD, एंड्रोजन की वजह से इस्ट्रोजन होते हुए भी एंडोमेट्रियम पर काम नहीं कर सकते। दैट इज वात कफज आवरण। पर्टिकुलरली ये एंड्रोजन है वो वात कफ का आवरण है जो इस्ट्रोजन को काम नहीं करने देता है, और वो इस्ट्रोजन एलएच का सिक्रेशन बढ़ा रहा है। एंड्रोजन भी डेवलपमेंट, ओवेरियन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, लेकिन इन अ लो क्वांटिटी। बट इफ इट इज हाई इन अ क्वांटिटी तो वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अरेस्ट करते हैं, और इसकी वजह से इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है, इस्ट्रोजन का काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस आवरण को दूर किया जाए, एक्सेसिव एंड्रोजन को घटाना है, तो वात कफ को हमें दूर करना, आवरण को दूर करना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली पित्त बढ़ाना है ऐसा नहीं है, वात कफ के आवरण को दूर करना है। ये एंड्रोजन है वो जीएनआरएच को सप्रेस करके रखते हैं, तो वहां मतलब हमें प्राणवायु पे भी काम करना है। तो इस पेशेंट को, जब वो पेशेंट आई तब हमने उसको नश्य दिया, पर्टिकुलरली सतपुष्पा तेल, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन अवर कॉलेज, in hospital. 8 drops for 5 days only. After 5 days nausea, she get period in next 8th or 10th day. Then nausea is advised in a follicular phase. उसको वो जो मेंसेस आया उसके बाद हमने फोलिकुलर फेज में फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन हमने उसको नश्य एडवाइस किया है। अलोंग विद दैट हमने उसको आर्तजनन औषधि और दीपन पाचन औषधि भी दी है। तो नश्य, अब वो पेशेंट जब वापस आएगा तब पता चलेगा कि एक बार तो नश्य से मेंसेस आ गया, वापस नश्य से उसका कब उसका मेंसेस वापस आता है। तो इस तरह के पीसीओडी के पेशेंट में, बिकॉज शी इज 19 ईयर कॉलेज गोइंग गर्ल, सो शी कैन नॉट कम फॉर द बस्ती रेगुलरली, सो वी हैव एडवाइज नश्य। एक्चुअली इस पेशेंट में नश्य के साथ साथ अगर बस्ती भी दी जाए, अगर पेशेंट इज रेडी, तो इसमें एक्सीलेंट रिजल्ट हमें मिलेगा। Then the third one is 42 year old patient. उसकी मेन कंप्लेंट थी फेल्योर टू कंसीव, डिलेड मेंसेस। तो उसका एमएच लेवल भी बहुत लो था। उसने विरेचन करवा के पेशेंट हमारे पास आई थी, तो हमने सीधा योग बस्ती और उत्तर बस्ती में लिया। आफ्टर 3 months शी हैजंट गेट एनी पीरियड। दीपन पाचन वातानुलोमन सब ओरल ट्रीटमेंट भी साथ में चल रही थी, फिर भी पेशेंट स्टिल हैड नॉट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग। So we have asked for the FSH level and it comes 82. So we have explained the patient the condition. उसको सेकेंड ओपिनियन के लिए भी बोला है, वो सेकेंड ओपिनियन भी लेंगे। और ये प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का पेशेंट है, सो देर इज अ वेरी लेस चांस कि उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो। The fourth patient was 23 year unmarried again, sporting menses। up to 3 months के उसका इंटरवल था, आता था 7 to 8 days, लेकिन ओनली स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग। सो इट इज अ क्लियर कट दैट देयर इज अ रश एंड रक्त से रक्त का जितना संचय होना चाहिए नहीं हो रहा था। तो हमने उसको दीपन पाचन, वातानुलोमन और रस रक्त की वृद्धि हो उसके लिए पेशेंट को सब मेडिसिन दी, और उसकी यापन बस्ती प्लान की है। और ये कंफर्म हुआ सोनोग्राफी से कि उसका यूट्रस नॉर्मल है, ओवरी नॉर्मल है, लेकिन एंडोमेट्रियम जो है वो थीन है। तो मतलब हमें रस और रक्त की वृद्धि करनी है जिससे आंतों की वृद्धि और एंडोमेट्रियम की वृद्धि हो। तो अनमेरिड है इसलिए उत्तर बस्ती नहीं करेंगे, लेकिन यापन बस्ती जो हम दूध के क्षीर पाक से करते हैं वो हमने प्लान की है। नेक्स्ट पेशेंट वाज 36 years ओल्ड पेशेंट। इसकी एसोसिएटेड कंप्लेन मेन जो थी वो थी वेट गेन। उसने पिछले 1 साल में उसका वजन 55 से 86 केजी बढ़ा था। हमने थायराइड चेक करवाया, दैट वाज नॉर्मल। सो द मेन कॉज इज ओबेसिटी, एंड एज वी नो फैट सेल्स are the main place where androgen production is there. So again, androgen production is there high in amount, so there will be delayed menses and a scanty menses. So particularly this patient को हमने weight loss के लिए बोला है, करवा रहे हैं, वात कफ शोधन का उसकी मेडिसिन दी है, लेखन बस्ती स्टार्ट करवाई है, और नस्य भी इंक्लूड करवाया है। हम बस्ती और नस्य दोनों साथ में देते हैं। लेखन बस्ती पर्टिकुलरली गोमूत्र से स्टार्ट की है, एक कोर्स उसका हो गया है, मेंसेस उसका आ गया है, अब वो खत्म होने के बाद वापस दूसरी लेखन बस्ती प्लान की हुई है। And the last patient was 15 years unmarried patient.
अगेन 6 मंथ हेमेनोरिया जब पेशेंट हमारे पास आई तब, और उसकी हिस्ट्री भी थी 4 से 5 महीने में 3 से 4 दिन ही आता है। इस पेशेंट को हिस्ट्री थी एपिलेप्सी की, और उस वजह से वो पेशेंट एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही थी। एट दैट टाइम ईईजी वाज नॉर्मल, उसकी एपेटाइट बढ़ी हुई थी और ऑब्वियसली मेडिसिन चल रही थी, स्लीप भी ज्यादा थी। तो द प्रोबेबल कॉज इज द सेडेटिव मेडिकेशंस। इसको बोल सकते हैं कि वात कफ का आवरण यहाँ पे भी है, जिसकी वजह से जो ये जो दवाइयों की वजह से उसको वो सेडेशन में उसको सप्रेस करके रखता है। इसको हमने पाचन और वातानुलोमन दिया। जब पेशेंट आई हमने अगेन इस पेशेंट को भी नस्य दिया, क्योंकि अगन हमें यहाँ पे जो सप्रेशन है उस लेवल पे काम करना है। तो नस्य देने के बाद उसको मेंसिस आ गया। पूरे 4 दिन के लिए 2 दिन प्रॉपर फ्लो हुआ, 2 दिन स्पॉटिंग स्पॉटिंग हुआ। एफएसएच उसका करवाया, नॉर्मल है। अब वापस उसको अगेन हमने बोला है अगर ये पेशेंट नस्य में कंटिन्यू रहती है तो भी वो नेक्स्ट मंथ से आएंगे। सो एट द एंड, in the last conclusion, what points should be noted for the treatment planning? तो डिटेल हिस्ट्री इज मस्ट। उसके डाइट को देखो, डाइटरी टाइम को भी देखो, क्योंकि जीएनआरएच जो हॉर्मोन्स है वो साइक्लिक है, पल्सेटाइल्स है। तो अगर उसका खाने का शेड्यूल डिस्टर्ब है तो वो हमें उसको बताना चाहिए। एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है तो, और अगर ओबेस पेशेंट है तो उसको एडवाइस भी करना है। surgery or any associated disease like thyroid, yeah, diabetes, or any meditation if she is taking which is suppressing the GnRH hormones or ovarian hormones, तो ये डिटेल हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल पर्टिकुलरली आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना टाइम से खाते नहीं है, द क्वालिटी ऑफ द फूड इज टोटली डिटोरिएटेड, एंड रात को जागना दिन में सोना, ये पूरा वात कफ का आवरण, वात और कफ की ही दुष्टि हो रही है। तो ये हमें डिटेल नोट करना चाहिए। एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स, अगर हिसुटिज्म है, वेट गेन या वेट लॉस भी हुआ है, और पर्टिकुलरली ये अपान वायु का क्षेत्र है तो बोवेल और यूरिनेशन के लिए वो पर्टिकुलर पूछना चाहिए। उसका वेग धारण करके तो नहीं रहते। हमारे पास ऐसे पेशेंट, 1-2 पेशेंट ऐसे आए हैं जो कॉलेज में है, अप डाउन करते हैं, उसकी वजह से उनको यूरिन का वेग धारण करके रखना पड़ता है कि बस रुकेगी तब जाके उनको, या कॉलेज आएंगे तब जाके वो यूरिन पास करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। इफ अपान दुष्टि इज देयर बिकॉज ऑफ वेग धारण, या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो भी वो इफेक्ट करता है आर्तव स्रोतस को भी। फिर यूएसजी फॉर द एक्चुअल सिचुएशन इन द यूट्रस ऑफ द यूट्रस, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है जानने के लिए, और किस लेवल पे डिस्टरबेंस है ये देखने के लिए हम हार्मोनल प्रोफाइल भी करवा सकते हैं। आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो देयर इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट इन अ लिमिटेड ड्रग्स and resources we are providing good result to the patients, luckily. So this is my presentation and what I think of HPO axis, and how to how to explain this in a case of amenorrhea or arthokshay, is all this. So now thank you so much, and I'm actually curious for the any kind of suggestion or any questions from all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful lecture. It was a pleasure to listen to you and all the topics and how the correlation has to be done regarding Vat Kaf Avran and other things we were able to understand today. So, thank you so much for the wonderful lecture. Thank you, ma'am. We will now start with the question and answer session. So, requesting all delegates, if anyone has any question and answer questions to ask, then kindly ask the questions in the chat box, and ma'am would be keen to answer all the questions.
I am also asking if you are practicing, what you are practicing, particularly in a case of Artavkshaya. Yeah. So I can say that in patients of Artavshaya, the same line of management like Vatanuloman, then Dipan Pachan, at times Rasa Pachan in cases of PCOD, as you said, Rakta Prasadan, yes, Masa, then Meda Pachak, all these things, Artav Janana Dravya, all these things we have to do, and FSH, LH, prolactin, depending on the resources, obviously, because in metros also the test rate is around 500 to 600 rupees of every test. So in metros also we have to think, in private practice also, whether the patient is affording or, not affording. Yes, yes, yes. Same questions here. Yeah. Oh. So the coordinator for the webinar is actually Dr. Abhishek. So now I will hand it over for the question Yes. and answer session to Dr. Abhishek. Kindly take over. Yes, मैडम. मैम एक क्वेश्चन है. जो स्ट्रिक गोनाड्स है, हमारे पास पेशेंट आते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी के, और उनके सोनोग्राफी में स्ट्रिक गोनाड्स लिखे रहते हैं, स्मॉल ओवरीज वगैरह लिखे रहते हैं. तो ये सब HPXC से के रिलेटेड है. तो हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इसमें? ट्रिक गोनार्ड से एक्चुअली वो कंजेनिटल है या ऐसे बोल सकते हैं जेनेटिकल है. सो देर इज अ वेरी लेस चांसेस, बट यहाँ पे मैं इसको इस तरह से बताऊंगी कि हमारे पास एक पेशेंट, 3-4 ऐसे पेशेंट है जिनको एट्रोफिक टेस्टिस थे, इनफर्टिलिटी के थे. इनका सीमेन एनालिसिस करवाया तो वो जब एजोस्पर्मिया आया तब हमने उनकी स्क्रोटम सोनोग्राफी करवाई, तो पेशेंट लेके आए एट्रोफिक टेस्टिस. तो यहाँ पे स्ट्रिक गोनार्ड ओवरी ले लो या एट्रोफिक टेस्टिस ले लो. 1-2 पेशेंट में हमें ऐसे, पर्टिकुलरली एक पेशेंट में ऐसे रिजल्ट मिले हैं जिनको हमने कंटिन्यूअसली फॉर द 6 मंथ नस्य और बस्ती करवाई है. तब जाके वो पेशेंट में जो 0 काउंट थे उसमें से 0.3 मिलियन काउंट आए हैं, तो विच देन दे वर रिफर टू फॉर द IVF. उनका ऐसे था कि उनको डोनर स्पर्म नहीं लेना है, उनका ही यूज करना है. तो आफ्टर द 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस योग बस्ती, यापन बस्ती, इंटरनल मेडिसिन, नश्य एंड हम उनको यज्ञ भी करवाते हैं यहाँ पे देवपाशी चिकित्सा के साथ साथ, तब जाके उनको ये थोड़ा सा प्रोडक्शन मिला. तो द सेम ट्रीटमेंट कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिक गोनाड्स टू. हम, मेरे पास ऐसे एक भी पेशेंट नहीं आया है, लेकिन इट कैन बी, जो बोला है कि जो शुक्र को लागू पड़ता है वो आर्तव को भी लागू पड़ता है. तो ये आर्तव शुक्र वाला जो पोर्शन हमें मिला, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कंटिन्यूस उनको नश्य से उनको हाइपोथैलेमिक लेवल पे कंटिन्यूस उनको स्टिमुलेशन करो और अपान को भी स्टिमुलेशन करो, क्योंकि प्राण और अपान का ही कोऑर्डिनेशन है जो आर्तव के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. किसका नस्य हम यूज कर सकते हैं इस केस में? हाँ, सतपुष्पा तेल का पर्टिकुलरली, या फिर महानारायण तेल का. ऐसा तेल जिसमें फाइटोएस्ट्रोजेनिक कंटेंट्स ज्यादा हो, जैसे कि शतावरी, सतपुष्पा, सुंठी, यष्टि मधु, गुड़ुचि, शंखपुष्पी, ये जो सारे द्रव्य है उसमें से प्लेन सतपुष्पा भी ले सकते हैं या महानारायण तेल का भी ले सकते हैं, या तिल तेल भी चलेगा. तिल तेल भी चलेगा, अगर कुछ नहीं मिलता तो तिल तेल भी चलेगा. और ये जैसे पल्सेटाइल मैनर में जीनारिज का सिक्रेशन होता है, तो उस तरह उसमें भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे भी नश्य के ड्रॉप्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. स्टार्ट फ्रॉम द 6 ड्रॉप for 2 days, then 8 drops for 2 days, then 10, 12, मैक्सिमम हम 14 ड्रॉप्स तक देते हैं. फिर ग्रेजुअली उसको कम करके वापस 6 ड्रॉप पर ले आते हैं. अलॉन्ग विथ बस्ती, यापन बस्ती, पहले शोधन बस्ती और फिर यापन बस्ती. यापन बस्ती में हम क्षीरपाक यूज करते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ुचि और बलाका. Yes, madam. Thank you, ma'am. Next question is from Preeti Mangulkar, ma'am. Can you explain about Nasya, like Adrak Swaras, Maricha Nasya, dosage and duration?
ये जो पर्टिकुलर नशे आपने बताया अदरक और मरीच का, ये क्या एकदम उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य है। हम हमारी कॉलेज में या मैंने अब तक पीजी और यूजी में भी ये ड्रग्स पर्टिकुलरली अदरक और मरीच का यूज नहीं किया है। लेकिन मैंने ये सुना है शुंठी का जो तेल है वो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए पर्टिकुलरली यूज होता है, पर्टिकुलरली फॉर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जो ओव्यूलेशन स्टडी हम करवाते हैं जब उस फॉलिकल की साइज 18 या 19 तक पहुंच जाती है, उस दिन ये पर्टिकुलरली उष्ण द्रव्य का नस्य मैक्सिमम 3 to 4 ड्रॉप्स उनको देते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकुलर रप्चर होता है और ओव्यूलेशन होता है। तो ये अगर आप ये पर्टिकुलर ड्रग यूज करते हैं तो माय एडवाइस इज देयर यू शुड give this nurture as per the ovulation study and for only one time, one day, and in very 3 to 4 drops dose. Thank you, ma'am. Next question from Pranali Dandekar, madam. In POI, what suggested or given the line of treatment? For POI, if FSH is more, एक्चुअली तो 40 से ज्यादा है तो हम उसको POI या POF ही बोलेंगे। फिर भी अगर उसकी मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन की हिस्ट्री देखी जाए और पेशेंट की चीफ कंप्लेन, अगर पेशेंट की कंप्लेन फेल्योर टू कंसीव है, तो देर इज अ वेरी लेस चांसेस के देर इज ओव्यूलेशन आफ्टर अवर मेडिकेशन, बट देर कैन बी अ मेंस्ट्रुएशन फॉर श्योर। उसके लिए आप उनको विरेचन से स्टार्ट करवाओ। विरेचन के बाद योग बस्ती, शोधन के बाद ये योग बस्ती उनको एटलीस्ट गिव फॉर 2 साइकिल, एंड फ्रॉम द थर्ड साइकिल योग बस्ती के साथ ही आप उनको उत्तर बस्ती भी एडवाइस कीजिए। उत्तर बस्ती में पर्टिकुलरली फलगृत या गोघृत या फिर कोई भी ब्रूहणीय द्रव्य, पर्टिकुलरली घी, घृत नॉट तेल, घृत यूज कीजिए। वो बस्ती में भी स्नेहन में आप घृत ही यूज कीजिए, और उस वजह से उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट डेफिनेटली हो जाएगा। हमारे पास ऐसे 2 पेशेंट है POI के। वन पेशेंट 21 year old अनमेरिड गर्ल विथ शॉर्ट स्ट्रेचर, उनको थायराइड भी था, तो उनको उस लड़की को हमने 4 या 5 महीने तक ओरल और बस्ती दिया। उसको बिल्कुल मेंसेस नहीं आता था, उसकी जगह उसको ड्रॉप ड्रॉप मेंसेस चालू हुआ है। और ये जो पेशेंट मैंने अभी आप यहाँ पे शेयर किया है, उस पेशेंट को हमने विरेचन के बाद योग बस्ती उत्तर बस्ती सब दिया है। इवन आफ्टर 4 months ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑल, स्टिल शी इज नॉट गेटिंग मेंस्ट्रुएशन। सो POI के केस में ये थोड़ा रहता है कि ओव्यूलेशन होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली मेंसेस ये दवाइयाँ दे रहे हो, औषधि पर्टिकुलरली अपनी, तो मेंस्ट्रुएशन होगा पक्का। Yes, madam. Thank you. Next question. Uh, Navajyoti Hospital name. I don't know who is there. Age 42 years. She has already 2 girl child. She want to conceive again, but she has HTN and NIDDM. Her thyroid is normal, but she is obese. Her HbA1c is normal, AMH normal, uh, and that ma'am or sir is trying treatment for 3 cycles. But could not. Follicular study was also follicular study also normal. What to Okay. do next? Yes. इन दैट केस पर्टिकुलरली आप अगर पेशेंट को करवा सकते हैं अगर उनको, तो आप इसमें पंचकर्मा विरेचन से ही स्टार्ट करवाइए, क्योंकि पेशेंट आपने बताया ओबेज है। ओबेज पेशेंट में विरेचन से स्टार्ट करवाइए और उसके बाद लेखन बस्ती स्टार्ट करवाइए। यहाँ पे आप ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुएशन पे फोकस मत कीजिए, यहाँ पे आप पहले उसके वेट पे फोकस कीजिए। सिर्फ 3 से 4 kg उसका वेट कम करवाइए। इट इज इवन परफेक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। आपने बताया फॉलिक्यूलर स्टडी इज नॉर्मल,
इसमें आप लेखन बस्ती लेखन बस्ती 3 एटलीस्ट फॉर 2 साइकिल करवाए विद द यूज ऑफ गोमूत्र। हम जो लेखन बस्ती करवाते हैं ओबेस पेशेंट में, लेखन बस्ती गोमूत्र के साथ दशमूलक और महानारायण तेल से करवाते हैं। आप ये करवाइए, और साथ में बिकॉज हाइपरटेंशन डायबिटीज दोनों है, आप उनको देव वपाश्रय चिकित्सा के लिए भी बोलिए। आप उनको अग्निहोत्र यज्ञ जो करवाते हैं, कई सारी कॉलेजेस में करवाते हैं, वो उनको बोलिए कि आप वो भी हर मंथ हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों वो यज्ञ भी करें। कई बार ऐसा होता है कि सारी ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं ना, वो इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन ओरिजिन, वहां पे देवपाश्रय चिकित्सा बहुत काम करती है। सब चीज फिजिकल जो हम देख सकते हैं वो सब भी नॉर्मल है, फिर भी देर इज नो कंसेप्शन, सो देर मस्ट बी सम, जो हमारे में भी बोला है, देव जो कारण बताया है, तो उसकी भी चिकित्सा करनी जरूरी है। तो उसके लिए हम दान दक्षिणा बोलते, वो नहीं हो पाता। तो बेटर टू गो फॉर अ यज्ञ। उसके लिए गर्भ संस्कार यज्ञ भी बोलते हैं, और पर्टिकुलरली अग्निहोत्र यज्ञ जो ऑलमोस्ट सभी आयुर्वेदिक कॉलेज करते हैं, ये आप उनसे करवाइए। पंचकर्मा और देवपाश्रय चिकित्सा। Thank you, ma'am. Next question is from Dr. Pranali, ma'am. Explain the treatment of thin PCOS, insulin resistance patient with menorrhagia. यस, पीसीओडी का जो केसेस रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं, थीन एंड ओबेस, और दोनों में ये जो रहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट पर्टिकुलरली, और विथ मेनोरेजिया। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि उनका एनोव्युलर साइकिल रहेगा, क्योंकि तभी जाके मेनोरेजिया रहता है। जब इस्ट्रोजन ऑन अपोज लंबे टाइम तक रहता है, तब जाके मेनोरेजिया होता है। थीन पेशेंट है तो अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमें रस और रक्त का क्षय बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे पेशेंट में आप लेखन बस्ती दीजिए अगेन, लेकिन जो स्नेह यूज करना है वो तेल नहीं, घृत यूज करना है। सिंपल गोघृत लीजिए, लेकिन गोमूत्र जैसा लेखन द्रव्य भी यवक्षार है, वो भी उसमें ऐड कीजिए। तब जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना कम नहीं होगा, लेकिन उसका ओव्यूलेशन डेफिनेटली 100% स्टार्ट होगा। बस्ती करवाइए आप इस पेशेंट में। Yes, ma'am. Thank you. Next question from Arun Jadhav, sir. What should we do for raised prolactin level in infertility patient? Any nasya or any other Ayurvedic treatment? For prolactin level, if high, we are giving Dashmul Kvath, Trifala Google, and again Lekhan Basti, because there is a high production of prolactin, uh, which can correlate with the कफ दोष। सो अगेन लेखन बस्ती उनको देनी चाहिए, और दशमूल क्वाथ, त्रिफला गुगल, आरोग्यवर्धिनी, केशोर गुगल जैसे जो लेखन उष्ण द्रव्य है, वृक्ष उष्ण लेखन द्रव्य है, वो भी देने चाहिए। तो प्रोलेक्टिन लेवल पक्का वो कम होता है। लेखन बस्ती से प्रोलेक्टिन लेवल भी कम होता है, फैट सेल्स भी कम होते हैं पीसीओडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, विरेचन से भी वो कम होता है। लेकिन विरेचन से हाइपोथायरॉइड के थायरॉइडिज्म के पेशेंट में हमने देखा है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको। थायराइड की मेडिसिन के डोज कम हो गए, जो 75 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम और 12.5 मिलीग्राम तक हमने केसेस उनके डोजेस पहुंचाए हैं आफ्टर कंटिन्यूअस विरेचन सद्यो विरेचन विरेचन सद्यो विरेचन। तो इस पेशेंट में आप विरेचन और लेखन बस्ती दोनों करवा सकते हैं। अगर क्लासिकल विरेचन नहीं हो पा रहा है तो महीने में 2 बार उनका सद्यो विरेचन करवाइए। तो इस पेशेंट का प्रोलेक्टिन लेवल श्योर कम हो जाएगा। सद्यो विरेचन 2 times in a month with, and again after that लेखन बस्ती। Thank you, ma'am. Next question from Pranali, ma'am. PCOS guidelines says that if prolactinemia is there in PCOS, don't treat prolactinemia. First see for TSH and first thyroid. Is that true?
यस, एक्चुअली पीसीओडी का जो केसेस है या पीसीओएस के, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम उसको इस तरह से देखते हैं कि ये हार्मोन ज्यादा बढ़ गया है, प्रोलेक्टिन भी बढ़ गया है, प्रोलेक्टिन को हमें उसमें नहीं ट्रीट करना चाहिए, मतलब पूरा अगर हम हॉर्मोन्स को ही देखेंगे तो हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें ये देखता है कि प्रोलेक्टिन अगर बढ़ा है, दैट मीन्स आर्थो प्रोडक्शन इज सप्रेस बिकॉज ऑफ सम दोष, दैट इज पर्टिकुलरली जो बताया है संप्राप्ति जो बोल रहा है कि वात और कफ के वजह से ये हुआ है। तो आप प्रोलेक्टिनेमिया को साइड में रखिए, वात और कफ को ध्यान में रखिए और वात और कफ का आवरण दूर कर लीजिए। नो डाउट हमें उसके साथ ये देखना है अगर टीएसएच थायराइड भी है या नहीं है, एंड्रोजन एक्सेस ज्यादा है या नहीं। ये सारी चीजें हमें फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग और फॉर द सिलेक्शन ऑफ विच शोधन कर्म शुड बी अप्लाइड, ये उसके लिए ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि नहीं पहले इसको करो, और उसके बाद इसको करो। Yes, it is important to know, but for the selection and for the prognosis कि आपकी ट्रीटमेंट उस पर कितनी काम करेगी। तो फॉर मी, अगर पीसीओडी के पेशेंट, पीसीओ या डीओ या पीसीओएस का पेशेंट है, तो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है और उसका फ्यूचर, अगर अनमैरिड है तो हमें फ्यूचर भी वो भी देखना है कि ओव्यूलेशन भी करवाना है। सिर्फ अभी मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन करवाना है तो आर्तवजनन सिर्फ दे दिया, इस तरह से नहीं, उसको ओव्यूलेशन पे फोकस करना है। और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो गई है तो फिर ओव्यूलेशन पे तो फोकस रखना है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की क्वांटिटी और साइकिल की लेंथ को नॉर्मलाइज करना है। उस हिसाब से इस पेशेंट में हमें शोधन से ही स्टार्ट करना है। अगर एवरेज टू ओबेस पेशेंट है तो शोधन से स्टार्ट करना है, थीन पेशेंट है तो उस शोधन पे ज्यादा, मतलब विरेचन से नहीं स्टार्ट करना है, बस्ती से स्टार्ट करो। वात कफ को दिमाग में रखते, मतलब वात कफ और प्राण को ध्यान में रख, प्राण और अपान का कोऑर्डिनेशन और अग्नि को ध्यान में रख के इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। Yes, ma'am. Thank you. Can you, same question is from Dr. Pranali, ma'am. Avran Chikitsa, can you please reveal in detail? आवरण चिकित्सा इसमें पर्टिकुलरली हमें दे दिया है कि किस चीज का आवरण है, वात और कफ का। इसमें पर्टिकुलरली लिखा है न तो पित्तम, और ये भी लिखा है कि आर्तव का सर्वथा क्षय नहीं होता है, मतलब आर्तव इस है, उसका रक्त का संचय कम हुआ है या रक्त का संचय हुआ है लेकिन वो बाहर आ सके इस तरह से उसको अपान वायु काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें वो आवरण, वात कफ के आवरण को दूर करना है। तो वात और कफ के आवरण को दूर करने के लिए ऑब्वियसली वी शुड गिव उष्ण द्रव्य, आग्नेय द्रव्य का विधिवत उपयोग जो लिखा है, दैट इज पर्टिकुलरली ये वात कफ आवरण की चिकित्सा है। तो पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट में हमें नश्य, वो वात कफ पे तो काम करता ही है, और बस्ती पे, क्योंकि अपान वायु मेन है, अपान वायु का कर्म वात कफ की वजह से नहीं हो रहा है। अगेन एक वात का कर्म दूसरे वात के आवरण से नहीं हो रहा है, तो अगेन वातानुलोमन होना बहुत जरूरी है, तो इसमें बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। नाउ वात और कफ के ड्रग्स को हमें शोधन करना है, तो आपके पास जो अवेलेबल वात और कफ शामक जो भी ड्रग्स है उस हिसाब से आप उसमें ड्रग के सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन द प्रोसीजर शुड बी नशा एंड बस्ती, ये दोनों साथ में भी दे सकते हैं या फिर बारी बारी भी दे सकते हैं, कि शुरुआत के सिक्रेटरी या प्रोलिफरेटिव फेज में आप नश्य दीजिए, ओव्यूलेशन के बाद आप बस्ती दीजिए। पेशेंट का डिस्मेनोरिया भी कम हो जाएगा, साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा। तो आवरण की चिकित्सा में इस तरह से प्लान करती हूँ। Thank you, ma'am. Virechan is to be avoided in Arthakshay. यस, There is विरेच, question. Yes. यस, ये एक मेरे भी दिमाग में ये जो आया था जब मैंने ये पर्टिकुलरली प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि विरेचन से पित्त का शमन होता है। नाउ पित्त इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्तव। अगर आर्तव क्षय के पेशेंट में हम विरेचन करवाते हैं तो पित्त का तो क्षय हो जाएगा, तो फिर आर्तव कैसे आएगा। तो विरेचन इज टू बी अवॉइडेड इन आर्तव क्षय, बट नॉट इन एवरी पेशेंट। अगर पेशेंट का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रेगुलर है और फिर
because of increase in weight, because of development of PCOS, there is आर्तवक्षय, तो आपको उसमें विरेचन करवाना ही चाहिए. लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, रस रक्त का क्षय होने की वजह से, अगर या एनीमिया या एचबी कम होने की वजह से, या अगर रस क्षय की वजह से उसका आर्तव क्षय हुआ है, तो उसमें विरेचन प्लान नहीं करना चाहिए, तब सिर्फ आप बस्ती प्लान करने चाहिए. लेकिन आर्तव क्षय के ओबेज पेशेंट में थायराइड की वजह से आर्तव क्षय हुआ है, तो उस पेशेंट में आप विरेचन करवा सकते हैं. सद्यो विरेचन इज गुड इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें अगर मैं विरेचन करवाऊंगी तो पेशेंट का और भी मेंसेस कम हो जाएगा, जो आता है वो भी बंद हो जाएगा, तो आप उसमें क्लासिकल विरेचन न करवा के सद्यो विरेचन करवाए. सद्यो विरेचन से भी शॉर्ट टाइम में अच्छा सा रिजल्ट मिलता है. वात कफ का जो आवरण बोलते हैं ना, वो निकल जाता है आराम से. तो ये सद्यो विरेचन करवा सकते हैं. Yes. Thank you, ma'am. Any other questions? I think there is no question. If you have any question, you can put in group also. Dr. Prajakta ma'am, Yeah. Priyanka ma'am, yes, can we conclude this session? Yes, Yes. yes. Today's Thank you so session much. was really informative. Thank you, Krupa Patel ma'am, for accepting the invitation. And it was a great lecture. And a lot of topics were explored in Ayurveda as well as modern context with case studies. And I think that was really informative because everyone sees such cases every day in the OPD. So thank you so much, ma'am, for the wonderful lecture. And thank you, Dr. Abhishek, for the wonderful coordination. So now, as the question and answer session is over, Dr. Abhishek, we can now proceed with the vote of thanks. Thank you. Yes, ma'am. हाँ On सर, behalf एक of मिनट. सर एक मिनट. yes, एक्चुअली yes, ma'am. आपके वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं एक्चुअली थैंक्स करना चाहती हूँ इस माध्यम पे डॉक्टर कामिनी धीमान मैडम का. शी इज माय teacher in PG. She was not my guide, but actually she has guided me throughout my all academic year and always praised me. So, and this opportunity is also given by them too. So I am actually heartily thanking her, Kamini Manda. Thank you so much. Yes, ma'am. On behalf of Nima OBGY Central and Nima OBGY Society Maharashtra, I would like to express my gratitude to Nima Central, Nima OBGY Central, and Nima OBGY Maharashtra. I would like also extend my gratitude to our eminent speaker, Dr. Krupa Patel ma'am, for delivering very knowledgeable and wonderful session. I would like to thank Dr. Prajakta Patel ma'am, Akash sir for the help and technical support, and all the delegates. Thank you so much. Now, with due permission of all dignitaries, I'm concluding today's webinar. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you all.